سوال: کیا سورۃ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے؟ جواب: جی ہاں، صحیح بخاری میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس سورت سے دم کرنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ یہ شفا ہے۔ سوال: قرآن کا دل کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ سوال: کیا سورۃ یاسین پڑھنے سے مغفرت ہو جاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث میں ہے، جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے سورۃ یاسین پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سوال: کون سا ذکر صبح و شام پڑھنے سے جادو اور مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے؟ جواب: آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، الفلق، الناس اور ان سورتوں کو صبح و شام 3 بار پڑھنا حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سوال: باجماعت نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں دیا گیا ہے؟ جواب: باجماعت نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: کون سا کلمہ جنت میں درخت لگاتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات جنت میں درخت بناتے ہیں۔ سوال: کیا سورۃ البقرہ شیطان کو گھر سے بھگاتی ہے؟ جواب: صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سوال: سورۃ البقرہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ جواب: آیت الکرسی کی آیت نمبر 255 سب سے عظیم آیت ہے۔ سوال: آیت الکرسی کس وقت پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: ہر فرض نماز کے بعد سونے سے پہلے، صبح و شام حفاظت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ سوال: کون سا کلمہ سب سے افضل ذکر ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ، یہی سب سے افضل ذکر ہے۔ سوال: کثرت سے استغفار پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص استغفار کو لازم کر لے، اللہ اس کے ہر غم کو دور کرے گا، ہر تنگی سے نجات دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا۔ سوال: سب سے پہلا سوال قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ جواب: نماز کے بارے میں۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے۔ سوال: نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ سوال: روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کیوں پسند ہے؟ جواب: اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی خوشبو مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ سوال: روزے دار کے لیے 2 خوشیاں کب ہوتی ہیں؟ جواب: افطار کے وقت اور اللہ سے ملاقات کے وقت۔ سوال: صدقہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ سوال: چھپ کر صدقہ دینے کا کیا درجہ ہے؟ جواب: قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک وہ بھی ہے جو چھپ کر صدقہ دیتا ہے۔ سوال: قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ جواب: قبر میں 3 سوالات ہوں گے: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ سوال: جنت میں جانے کے سب سے بڑے اسباب کون سے ہیں؟ جواب:
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का तकवा और हुस्न इखलाक। सवाल, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? जवाब, बासी रोटी खाने से मैदे की तेजाबियत और गर्मी कम होती है। सवाल, बासी रोटी किसके साथ खाना ज्यादा फायदेमंद है? जवाब, बासी रोटी दही या पानी में भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद है। सवाल, क्या बासी रोटी ब्लड प्रेशर के मरीज खा सकते हैं? जवाब, जी हाँ, बासी रोटी में नमक कम होता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इसे खा सकते हैं। सवाल, नहाने के बाद कौन सी सूरत पढ़ने से 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब, नहाने के बाद सूरत अल कद्र इन्ना अंज़लनाहु पढ़ने से 50 साल के गुनाह माफ होने की फजीलत एक रिवायत में बयान की जाती है, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ कमज़ोर है और इसकी कोई मस्तंद या सही हदीस मौजूद नहीं। अलबत्ता सूरत अल कद्र पढ़ना बेहद फजीलत वाला अमल है, क्योंकि यह कुरान की अज़मत और शब कद्र की अहमियत को बयान करती है। याद रखें, इस्लाम में गुनाहों की मुआफ़ी के लिए सबसे मौसर तरीके ये हैं: सच्चे दिल से तौबा, नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, अच्छे अमाल, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना। सवाल, क्या नहाने के बाद नंगे जिस्म कुरान पढ़ सकते हैं? जवाब, नहीं, कुरान मजीद की तिलावत के लिए लिबास और पाकीज़गी ज़रूरी है, खास तौर पर अगर आप कुरान को हाथ लगा रहे हों। सवाल, क्या नहाने के फौरन बाद दुआ कबूल होती है? जवाब, जी हाँ, नहाने के बाद इंसान पाकीज़गी की हालत में होता है और पाकीज़ा हालत में की गई दुआ की कबूलियत के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। सवाल, कौन सी चीज़ पीने से 80 साल तक बुढ़ापा नहीं आता? जवाब, शहद, नीम गर्म पानी रोजाना सुबह निहार मुंह पीने से जिस्म तंदुरुस्त, जिल्द जवान और मीठा बोलजम तेज रहता है। इससे बुढ़ापे के असरात देर से आते हैं। सवाल, फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्या साजिश रची? जवाब, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा और लोगों को उनके खिलाफ भड़काया। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में दरबारी जादूगर खड़े किए ताकि उनकी नबूवत को झुटलाया जा सके। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौन सी निशानियों ने फिरौन को हैरान कर दिया था? जवाब, सूरत अल-अराफ आयत नंबर 133 में है, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 वाज़िह निशानियां मौजूज़ात दी थी, जिनमें शामिल हैं असा का सांप बन जाना, हाथ का चमकना, टिड्डी दिल का हमला, खून में पानी का बदल जाना, कैद और वबाएं, मेंढकों की बारिश, जुए, तूफान, टिड्डों और खून का अजाब। सवाल, फिरौन की बीवी का नाम क्या था और वो कैसी खातून थी? जवाब, फिरौन की बीवी का नाम आसिया बिन्त मज़ाहम था। वो ईमान लाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर यकीन कर लिया, जिस पर फिरौन ने इन्हें सख्त अजियत दी। वो जन्नती औरतों की सरदारों में शुमार होती हैं। सवाल, क्या फिरौन के दरबार में कोई और शख्स भी ईमान लाया था? जवाब, जी हाँ, फिरौन के दरबार में मोमिन आले फिरौन कहलाने वाला एक शख्स ईमान लाया था, लेकिन उसने अपना ईमान छुपाया और हिकमत से कौम को समझाया। सवाल, मरने वाले के लिए सदका करना कैसा अमल है? जवाब, मरने वाले के लिए सदका करना जायज और बाइसे सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स अपने मरने वाले वालिदैन या अजीज के लिए सदका करे तो इससे फायदा पहुंचता है। सवाल, क्या मरने के बाद कुल ख्वानी करा के लोगों को खाना खिलाना जरूरी है? जवाब, जी नहीं, कुरान ख्वानी के बाद दावत का एहतमाम शरीयत में नहीं है। अगर यह रस्म बन जाए तो बिदअत है। एहसाले सवाब के लिए खामोशी से कुरान पढ़कर दुआ कर लेना काफी है। सवाल, क्या मैयत को ख्वाब में देखना हकीकत में मुलाकात होती है? जवाब, मैयत को ख्वाब में देखना मुख्तलिफ मायने रखता है। अगर ख्वाब नेक हो तो ये बिशारत हो सकती है, लेकिन हर ख्वाब की ताबीर जरूरी नहीं कि वो सही हो। सवाल, वजू के कितने फराइज हैं? जवाब, वजू के 4 फराइज हैं। पहला, चेहरा धोना,
दूसरा दोनों हाथों कैनों तक धोना, तीसरा सर का मसीह करना और चौथा पांव टखनों तक धोना। सवाल, क्या दज्जाल का जिक्र कुरान में है? जवाब, दज्जाल का नाम कुरान में बराह रास्त नहीं आया, लेकिन उसके फितने का इशारा मौजूद है, मसलन सूरत कहफ में। सवाल, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? जवाब, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। सवाल, कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान मजीद तकरीबन 23 साल में नाजिल हुआ। सवाल, कुरान की सबसे अजीम सूरत कौन सी है? जवाब, सूरतुल फातिहा, जिसे अमल कुरान भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह सबसे अजीम सूरत है जो कुरान में नाजिल हुई है। सवाल, वो कौन सी चीज है जो निहार मुंह खाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता? जवाब, अंजीर को निहार मुंह खाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता। सवाल, निहार मुंह अंजीर खाने का क्या फायदा है? जवाब, यह जिस्म को ताकत देती है, खून को साफ करती है, हड्डियों को मजबूत करती है और बुढ़ापे के असरात को कम करती है। सवाल, क्या अंजीर खाने का कोई इस्लामी हवाला भी है? जवाब, जी हाँ, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि अंजीर जन्नत से आया हुआ फल है और यह बुढ़ापा रोकती है। सवाल, निहार मुंह और कौन सी चीज खाना फायदेमंद है? जवाब, शहद, जैतून का तेल, खजूर और नीम गर्म पानी भी निहार मुंह सेहत के लिए मुफीद